So good morning everyone. Today we are having a very interesting lecture which is about personality disorder. When we talk about personality in itself is a separate topic, personality disorders in itself is a different topic. So we will be covering here the aspect of personality disorder which is as per your curriculum. Okay. Uh, After a brief introduction, we'll have the little knowledge about the magnitude and etiology, followed by how the treatment process proceeds, then what are the side effects and complication of the drugs that can be used, and when do we need to refer to a specialist. Sorry. So, term personality is derived from a Latin term persona. So, if you all have seen certain theatre or movies, you might see people do wear mask and appear as a different person when they play a certain part. So, the term persona was derived from there. So, but when we talk about today's scenario or the society we live in modern psychological and literary context, it refers to the social phase or identity and individual presence to the world. Okay, this is just a layman definition. So, it is a product of both hereditary and environmental changes. Whatever you face in your life, how you react to that, this is something which proceeds you to take a certain form of personality in the future aspects. So, it generally starts developing in late adolescence or early adulthood. Okay, by the time you are in your early adulthood, a certain aspect of your personalities are built. The social and cultural factors as well as various experiences influence the development of personality. So when we talk about personality as such, it refers to deeply ingrained pattern of behavior which include the way one relates to, perceive and think about the environment and oneself. Whenever you face certain situation, whenever you meet certain people, whenever you're going certain internal turmoil, how do you see yourself as, how do you see the environment and how do you behave and react to that situation? This is something in broad covers the term personality. Whenever there is a deficit or a malalignment or let us say a disorganized way in which all these things are perceived, which are relatively connected or which are what we call is pervasive in nature, then the personality is converted into what we call personality disorders. Remember one thing, ki every one of us have a different traits when we talk about personality. Certain form of personality traits can be seen in every individual. But if they are persistent, pervasive and are disturbing and are maladaptive, then we tag that thing to disorder. Okay. So, a personality disorder is an enduring pattern of inner experience and behavior that deviates markedly from expectations of the individual's culture, is pervasive and inflexible, and has onset in adolescence or early adulthood. It is stable over time and leads to distress or impairment. So, DSM-5 gives this definition that whatever the inner experiences and the behavior, it deviates from its natural path, it deviates from what is considered as normal by the culture and the society, or how you have been how the people around you have been behaving, and it is pervasive in nature. You can find it in every situation. Okay, so this is something which is termed as personality disorder. And about the age of onset, I already told you. So always remember that personality disorder के तीन rule of P. They are pathological. They are not merely mild variant. कि थोड़ा थोड़ा difference तो सबकी personality में होता है. I told you already कि certain traits of personalities are always found in individuals. But they are not just mild variant. They are grossly variant, and they are not they are very far away from what we call as normal. They are pervasive, which affect multiple aspects of the surface life, and they are persistent, continuous and stable over time. So that is something which keeps on running. This is called the 3 P's of personality disorder. Another, whenever the personality disorder वाला patient आप देखेंगे, you will see the following 4 domains which are grossly affected: cognition, affect,
interpersonal functioning and impulse control. How you perceive things, how you perceive self and others, how you perceive certain environment or event. Okay, this is something which is affected. For example, a person, कोई इवेंट होगा जिसमें लोग बहुत बिजी होंगे, आपसे बात नहीं करें, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले को लगेगा मुझे तो सब इग्नोर करते हैं, एवरीबडी हेट्स मी, एवरीबडी लीव्स मी, ही और शी विल इग्नोर द फैक्ट कि वाला इवेंट में एवरीबडी इज बिजी, एवरीबडी हैज हिज और ऑन वर्क, बट दी माल एडेप्टिव कॉग्निटिव डोमेन जो है वो पर्सुएशन को फोर्स करेगा गलत डायरेक्शन में सोचने के लिए. ओके, देन अफेक्ट, इमोशनल लेबिलिटी देखने को मिलेगी, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा, बहुत छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाएंगे. ठीक है, इंटेंस इमोशंस देखने को मिलेंगे, या तो सब बहुत अच्छा है या सब बहुत ही खराब है. देन इंटरपर्सनल फंक्शनिंग विल बी डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ द डिसऑर्डर पर से. आपकी आप अपने आप में के बारे में क्या सोच रहे हैं, लोगों के बारे में क्या सोच रहे हैं, आप फंक्शन कैसे कर रहे हैं एक नॉर्मल इवेंट में भी, दिस इज विल बी डिस्टर्ब. एंड इम्पल्सिविटी, दिस इज समथिंग वेरी कॉमन इन इमोशनली अनस्टेबल पेशेंट्स, सॉरी हाँ, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. सो इसमें क्या होता है, विदाउट थिंकिंग कुछ ना कुछ, बहुत गुस्सा आएगा, फटाक से कुछ गलत बोल दिया या कुछ गलत कर दिया, स्पेशली सेल्फ हार्म कर लिया या कोई चीज तोड़ दी, तो इम्पल्स कंट्रोल की प्रॉब्लम देखने को मिलती है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में. ऑलराइट, सो दीज आर द 4 की डोमेन्स व्हिच विल बी अफेक्टेड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स. अच्छा, DSM-5 ने ना क्लस्टर्स में डिवाइड किया हुआ है. क्लस्टर ए में कुछ चीजें आती है, क्लस्टर बी में, क्लस्टर सी में. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन टाइप ए टाइप बी. टाइप ए टाइप बी पर्सनैलिटी वाला अलग चीज होता है. आई एम टॉकिंग अबाउट डिसऑर्डर्स पर से, जिसमें क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी. क्लस्टर ए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में उन्होंने कुछ ऐसी चीजें रखी हैं जिसमें कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, जैसे ऑड, अलूफ और एक्सेंट्रिक बिहेवियर होगा. तो ज्यादातर ये पैरानॉइड, स्किज़ोइड या स्किज़ोटिपल पर्सनैलिटी में मिलते हैं, डिसऑर्डर में मिलते हैं. नेक्स्ट इज क्लस्टर बी डिसऑर्डर्स. क्लस्टर बी में आपके वेरी जो इमोशनल इम्पल्सिविटी वाली जो बात मैंने कही थी, इरेटिक, ड्रामेटिक एंड वेरी इमोशनल, ये होते हैं क्लस्टर बी. बॉर्डर लाइन, हिस्ट्रॉनिक, एंटी सोशल एंड नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स इसमें आएंगे. देन क्लस्टर सी वाले आपके बहुत एंशियस, हार्म अवॉइडिंग, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी या फिर OCPD वाली पर्सनैलिटी, एनकास्टिक जिसको हम बोलते हैं कि एक चीज को एकदम ही मेटिकुलस करना है, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए. एंशियस, अवॉइडेंट एंड एनकास्टिंग और डिपेंडेंट वाली जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं वो क्लस्टर सी में आते हैं. गॉट इट? सो हम कुछ कोर फीचर्स देखेंगे इन जनरल. ठीक है, जब हम पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात करते हैं तो ओके, रिमेंबर ये साइकोसिस नहीं है, ये पर्सनैलिटी का ट्रेट्स है पेशेंट का, और ये डिसऑर्डर में फॉर्म हो रहा है. ठीक है, पर परसिस्टेंट एंड परवेजिव मिसट्रस्ट होगा, लोगों पे विश्वास कम होगा, एंड कुछ भी कोई करेगा तो इंटेंशन उसको आपको उसका इंटेंशन खराब लगेगा. ठीक है, यू माइट फील कि दैट पर्सन इज हार्मफुल टू यू, यू माइट फील हॉस्टाइल टुवर्ड्स द पर्सन. स्किज़ोइड और स्किज़ोटिपल में याद रखिएगा, थोड़ा एक जैसे ही है ये. स्किज़ोइड में अकेला रहना प्रेफर करता है इंसान, लोगों से बातचीत कम करेगा, अपनी दुनिया में रहेगा और सोशली अपने आप को एक्सप्रेस भी कम करेगा. ठीक है, स्किज़ोटिपल में ना आपको कुछ ऑड बिहेवियर देखने को मिलेगा, ऑड एक्सप्रेशंस देखने को मिलेंगे, स्पीच एंड परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस भी थोड़े थोड़े डिस्टर्ब होते हैं. ठीक है, इंटरपर्सनल सिचुएशन होगी जहां भी लोगों से रिलेशन बनाना है या कुछ अपने काम है, उसमें बहुत ही एंशियस होगा स्किज़ोटिपल वाला, इन कंपैरिजन टू स्किज़ोइड जो प्रेफर ही अकेले रहने को करेगा, वो एक्सप्रेस ही नहीं करेगा, जबकि स्किज़ोटिपल में आपको ऑड बिहेवियर और ऑड एक्सप्रेशंस देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारे क्लस्टर ए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में ये 3 चीजें आ गई. क्लस्टर बी में ये 4 याद रखिएगा, हिस्ट्रियोनिक, बॉर्डरलाइन, नार्सिसिस्टिक एंड एंटी सोशल. तो हिस्ट्रियोनिक में क्या होता है ना, बहुत अटेंशन सीकिंग बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा, सुपरफिशियल एंड मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप्स मिल सकती है, इमोशनैलिटी बहुत ज़्यादा होगी, अपने आप को एक्सप्रेस करने की चीज़ें, बहुत ही ड्रास्टिक और वेग तरीके से पर्सन ड्रेस कर सकता है जस्ट टू सीक अटेंशन. सो दिस इज समथिंग विच और पब्लिक बिहेवियर भी बहुत आउटवर्ड इमोशनल एक्सप्रेशन होगा.
नाम याद करिए, किसी ना किसी आपको नाम याद आ जाएगा हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में, ठीक है। तो दिस इज व्हाट हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज बॉर्डरलाइन। प्लीज सी बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर को ढंग से समझिए। दिस इज समथिंग विच यू कैन एनकाउंटर ऑल्सो। थोड़ा सा डिफिकल्ट मैनेज इसलिए होता है बिकॉज इसमें सेल्फ हार्म टेंडेंसीज ज़्यादा होती है, ठीक है। इम्पल्सिविटी है, इसमें बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट वाला बहुत होता है कि ये अच्छा है तो अच्छा है, ये बुरा है तो बुरा है, ठीक है। दे अवॉइड सीइंग द बिटवीन ग्रे एरियाज। इनएबिलिटी, इनस्टेबिलिटी ऑफ अफेक्ट, यहाँ पे भी रिलेशनशिप, बिकॉज फीलिंग ऑफ अबेंडनमेंट कि मैं बिल्कुल अकेले हूँ, मैंने सबके लिए सब कुछ किया, फीलिंग ऑफ बीइंग एम्प्टी इनसाइड, ये सारी चीज़ें आपको बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में मिलेंगी, ठीक है। इम्पल्सिविटी, इनस्टेबिलिटी ऑफ अफेक्ट, सेल्फ इमेज इन रिलेशनशिप्स आर वेरी डिस्टॉर्टेड इन दिस, ठीक है। नेक्स्ट इज नार्सिसिस्टिक। नार्सिसिस्टिक को याद रखिए, इसमें इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम, ठीक है, लैक ऑफ एम्पैथी, एम्पैथी, लैक ऑफ एम्पैथी इज देयर, ठीक है, एंड सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव बिहेवियर देखने को मिलेगा। इवन इफ द पर्सन इज रॉन्ग, द पर्सन विल फाइंड अ वे टू ब्लेम इट ऑन यू, ठीक है। द मैनिपुलेशन कैन बी ऑफ सच लेवल कि जो सामने वाला विक्टिम है या सामने वाला पर्सन है, तो दैट विल ऑलवेज बी कंफ्यूज कि क्या ये सच में मेरी ही गलती है। Despite of seeing that everything the person is doing is wrong, the manipulation will be so good that person जो सामने वाला है, he or she won't be able to recognize, okay। And next is your antisocial behavior. Antisocial behavior is something जहाँ पे disregard for laws होंगे, ठीक है। rights laws का ज़्यादा वो नहीं होता है, ज़्यादातर आपको criminal जो होते हैं वो उसमें आते हैं, ठीक है, इस कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स में आते हैं। एंटी सोशल के साथ आपको नोवेल्टी सीकिंग बिहेवियर, सब्सटेंस यूज बिहेवियर, हाई रिस्क बिहेवियर, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। सो दिस इज समथिंग विच वी सी इन क्लस्टर बी, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लस्टर सी, एंशियस अवॉइडेंट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, persistent fear of scrutiny, embarrassment and humiliation, avoidance of situation where this is anticipated, and sense of inaptness कि कुछ गलत तो नहीं होगा, अभी कुछ खराब हो जाएगा, मैं ये करता ही नहीं हूँ, ठीक है। अ लिटिल बिट ऑफ एंजाइटी हर किसी को होती है, एग्जाम से पहले, एग्जाम है एंजाइटी हो रही है, कहीं बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन देना है एंजाइटी हो रही है, बट दिस एंशियस अवॉइडेंट में हमेशा, अरे क्लास में लेट हो जाएगा तो एंजाइटी हो रही है, ठीक है, मैं आगे बैठ जाऊंगा तो एंजाइटी हो रही है, तो एवरीथिंग एंड देयर इज सच ए सर्टेन फीलिंग कि अगर कुछ भी गलत होगा आई विल बी ह्यूमिलेटेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट, I cannot do this, I am not up to the mark for performing this and that activity, okay। This is what are the characteristic traits you will see in anxious avoidant personality. Next is your dependent personality। यहाँ पे excessive need for care होती है कि मेरे पे ध्यान दो, मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा, कोई मुझे छोड़ के ना चले जाए, ठीक है, छोड़ के चले गए तो थोड़ी देर के लिए तो बहुत ज़्यादा डर, और इनडिसिसिवनेस, खुद से डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है, दैट इज लैकिंग। नेक्स्ट इज एनकास्टिक, और यू कैन ऑल्सो से ओसीपीडी ट्रेट्स जिसमें होता है, उस यहाँ पे आपको एक्सेसिव नीड फॉर कंट्रोल एंड परफेक्शनलिज्म, इस हद तक के काम कंप्लीट ही नहीं होगा, इस रो को एकदम 1 2 3 4 इस टस से मस नहीं होना है, तो वो लाइन ही नहीं बन पाएगी, ड्रॉ ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। एट द कॉस्ट ऑफ ओपननेस, flexibility and completion. These are the core feature of certain personality disorders which we have seen. Okay. Now we'll move towards the competency जो आपके उसमें है, कोर्स में है. So we'll see about magnitude and etiology of personality disorder. See, when we talk about magnitude of personality disorder, up till date बहुत सारी studies lack करती हैं. जो भी स्टडीज है वो मेटा एनालिसिस हैं, या किसी ने आउट पेशेंट, कितने आउट पेशेंट आते हैं उसके रिगार्डिंग, या रिवर्स कोई स्टडी कंडक्ट की है उसके बेसिस पे है. सो इट वाज अ मेटा एनालिसिस व्हिच वाज डन इन सम वेस्टर्न कंट्रीज. तो उसमें मिला था कि द प्रिवेलेंस ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज क्वाइट हाई, अप टिल अराउंड 12.6%. उसमें से भी क्लस्टर ए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर सबसे ज्यादा देखने को मिले थे, अप्रोक्सीमेटली 7.23, फॉलोड बाय क्लस्टर सी 6.7 एंड फॉलोड बाय क्लस्टर बी. क्लस्टर सी में भी आपका एज फार एज आई रिमेंबर कि एंग्शियस अवॉइडेंट वाली जो पर्सनैलिटी थी वो सबसे ज्यादा देखने को मिली थी. अगेन जो DSM-5 है उसमें थोड़ा वेरी करता है कि इन जनरल पॉपुलेशन 6% होता है, कुछ स्टडीज बोलती हैं 6 to 10% है.
कुछ स्टडीज बोलती है कि साइकेट्रिक ओपीडी में या आईपीडी में जो पेशेंट दिखाने आते हैं उसमें से मोटा मोटा 20 to 30% patients can have personality disorders. When we talk about India, the studies are still lagging. This was a study conducted very far, I think it is 1986 है या 1996 I can't remember it. तो population ranging from 0.2 to 0% to 2.8% patients में personality disorders देखने को मिले थे, ठीक है, with weighted mean prevalence of 0.6. ओके, दिस इज अ रेट्रोस्पेक्टिव चार्ट जो कि एक नॉर्दर्न इंडियन ओपीडी में देखने को मिली थी। तो उसमें प्रिवेलेंस अराउंड 1.07% है। रीजन पे कल्चरल डिफरेंस, बहुत सारी चीजें कल्चरली सही कह दी जाती हैं, उसको मास्क कर दिया जाता है या उसको डिसऑर्डर कंसिडर ही नहीं किया जाता है, ठीक है, और रिपोर्टिंग बहुत कम है। तो दीज आर द रीजन विच कुड बी द कॉज कि इंडिया में अभी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का हमें अच्छे से प्रिवेलेंस बहुत बेटर नहीं पता है। अगर जेंडर पैटर्न देखें तो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आर मोर कॉमन इन मेल, whereas borderline histrionic personality are more common in female. Okay, comorbidity देखें तो एक्सेस वन डायग्नोसिस एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, obsessive compulsive disorder. These are some of the and depressive symptoms are seen along with the personality disorder. When we talk about the disease burden, chronic interpersonal dysfunction, occupational and personal impairment, and especially the risk of suicide or self-harm risk with cluster B वाले जो personality है उनके साथ देखने को मिलता है, ठीक है। This is what we talked about magnitude. Now moving on to the etiology. So we have already seen कि etiology हमेशा तीन aspects में होती है psychiatric disorder में, biological, psychological and social. इन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर साइकोसोशल वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट वी कैन नॉट इग्नोर द बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स एज वेल। सर्टेन स्टडीज, ट्विन स्टडी, पेरेंटल स्टडीज में हेरिडिटरी ट्रेट देखने को मिला है। ट्विन स्टडीज शोज हेरिडेबिलिटी अप टू 40 to 16%। देन न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स देखें तो डोपामीन का बढ़ना, सेरोटोनिन का कम होना, एड्रेनलिन का क्या बोलते हैं लेवल्स में डिसफंक्शंस आना, दीज आर आल्सो सीन in the personality disorder patient. Along with that, हम electrophysiologically बात करें तो evoked response potential in CNS, especially in ASPD patient में abnormality है, CNS disinhibition देखने को मिला है। Talking about particular areas of brain, limbic system की hyperactivity देखने को मिलेगी, prefrontal cortex में आपको dysfunction मिलेगा, especially because ये जो आपका इमोशनल ब्रेन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, लिम्बिक एरिया जो है आपका, या फिर जहाँ से आप प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें आपका आप एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, आप सोचते कैसे हैं, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। सो दीज आर ऑल डिस्टर्ब्ड व्हेन वी टॉक, व्हेन इन दीज एरियाज एबनॉर्मलिटी हैज बीन सीन। So whenever you see a patient of personality disorder, you cannot say कि किसी की कारण क्या रहा होगा, they are actual proof कि उनमें structurally, functionally, neurobiologically disturbances हैं, ठीक है, that is why we are calling it a disorder. Okay, then especially in ASPD patient reduced prefrontal gray matter देखने को मिला है। Schizotypal schizoid patient में आपको enlarged ventricle and smaller temporal lobe देखने को मिलते हैं अगर आप क्रॉस चेक करोगे नॉर्मल पेशेंट्स के साथ, तो ठीक है। सो दीज आर द बायोलॉजिकल फैक्टर्स व्हिच लीड्स टू पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट वी विल मूव टू साइकोलॉजिकल फैक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज अर्ली चाइल्डहुड ट्रॉमा, ठीक है। तो बचपन में अब्यूज है, नेग्लेक्ट है, पेरेंटिंग अच्छी नहीं है, स्पेशली फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जाके आपको क्लस्टर बी ट्रेट्स देखने को मिल सकते हैं। देन माल अडेप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म सीख लिया, पुअर कोपिंग मैकेनिज्म है, अटैचमेंट स्टाइल में डिस्टर्बेंसेस है, अगेन अटैचमेंट आपका इनसिक्योर या डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट सिंस चाइल्डहुड से रहा है, पेरेंट्स का इनकंसिस्टेंसी रही है। तो दीज आर फ्यू साइकोलॉजिकल फैक्टर जो कि आपके आगे वाले जो टेम्परामेंट है, जो आपका कैरेक्टर है, जो मिल के बाद में पर्सनैलिटी बनाता है, उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर सोशल फैक्टर्स। अगेन एज आई टोल्ड यू, chaotic फैमिली एक्सपीरियंसेस, हाई एक्सप्रेस्ड इमोशन है, सब्सटेंस यूज है, और सर्टेन कल्चरल नॉर्म्स और बिलीव्स हैं जो कि एक्सेप्टेड होती हैं। शायद कहीं पे बंदूक चलाना
कल्चरली नॉर्मल है, ठीक है, बट उस एरिया में इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अज्यूम कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी कौन सा है, कि नॉर्मल कल्चरल बिलीफ्स कौन से, किस वजह से गन चला रहे हैं, ठीक है। सो देयर आर सर्टेन कल्चरल फैक्टर, फेमिलियल फैक्टर, अगेन वायलेंस की टेंडेंसी है, पॉवर्टी है, सब्सटेंस यूज है, एंड सर्टेन जेंडर स्पेसिफिक फैक्टर्स की सर्टेन चीजें तो मेल्स में होती ही होती है, एक्सेप्ट कर ली जाती है कि फीमेल्स वैसे बिहेव करती ही करती है, एक्सेप्ट कर ली जाती है, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें सोशल फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करती है आपकी आधी पर्सनालिटी कैसे शेप होती है, डिसऑर्डर में कैसे बदलती है। सो वी हैव सीन द बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स, एंड ब्रॉडली स्पीकिंग इंटरमिनिंग ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स जो होती है वो आपके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को कंट्रीब्यूट करती है इन फ्यूचर में। ओके, क्लियर? चलो, now the treatment part of personality disorder including behavioral, psychosocial and pharmacological therapy. Remember, when we talk about treatment of personality disorder, pharmacological से ज़्यादा रोल behavioral, psychosocial intervention का है। both therapist, psychiatrist and patient का equal contribution आएगा, तभी हम आगे जाके कुछ positive changes देखने को देख सकते हैं, because it is something which is ingrained in you, ठीक है। बाय द टाइम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आर डायग्नोस्ड, मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से या तो डिप्रेसिव सिम्टम के साथ आएंगे, या एंजाइटी सिम्टम के साथ आएंगे, या सब्सटेंस यूज के साथ आएंगे, ठीक है, या फिर कोई और कोमॉर्बिड इलनेस, साइकेट्रिक इलनेस हो सकती है, उसके साथ आएंगे। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को लगता ही नहीं है कि वो डिसऑर्डर, दैट इज लाइक दिस इज, मैं ऐसा ही हूँ, without realizing कि this is something very eccentric and very odd than the general norms of the population. So to treat people of personality disorder, it is going to take years and years, and there would be certain ups and downs in between the treatment as well. Alright. So what are the main aim? अगर बहुत ज़्यादा क्राइसिस सिचुएशन है, सेल्फ हार्म टेंडेंसी है, या हार्म टू प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रक्शन टू प्रॉपर्टी है, या हार्म टू अदर्स है, सबसे पहले हमें उसे कंट्रोल करना है। कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन आ रही है, बहुत ज़्यादा इमोशनल क्राइसिस आ रही है, उसे कंट्रोल करना है। इम्प्रूव टू रिड्यूस सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर, इम्प्रूव इंटरपर्सनल फंक्शनिंग, एनहांस इमोशनल रेगुलेशन, रिड्यूस मालएडेप्टिव बिहेवियर, एड्रेसिंग कोमॉर्बिडिटीज, कोई एसोसिएटेड कोई साइकाइट्रिक या कोई सब्सटेंस यूज तो नहीं है, एंड प्रमोट इंसाइट एंड एडेप्टिव कोपिंग, ठीक है। आपने उस वक्त तो ठीक कर दिया पेशेंट को, लेकिन आगे जाके बाहर जाता है, सोसाइटी में जाता है, दूसरा एनवायरनमेंट चेंज होता है, फिर से वही बिहेवियर, तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग रन ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट, ठीक है। आवर गोल इज इनसाइट बिल्डिंग, पॉजिटिव कोपिंग एंड अ लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, एंड ऑल्सो रिमेंबर हर किसी पेशेंट में सारी चीजें एक साथ नहीं अचीव हो सकती, किसी में थोड़े पॉइंट अचीव होंगे, हो सकता है एक साल बाद दूसरे पॉइंट अचीव हो, बट we'll have to move gradually while we are treating the patient of personality disorder. A therapist or a psychiatrist require lots of patience and farsightedness when treating the patient. Okay. So we'll move towards the behavioral and psychosocial therapy. So what happens in behavioral or psychosocial therapy? They are mostly structured, goal-oriented treatment which involves communication between a trained therapist and a patient, which is aimed to elevate psychological distress and modify maladaptive behavior and thought pattern, and change unwanted or maladaptive behavior by using the technique based on the principle of learning theory. तो इसने दोनों साइकोसोशल और बिहेवियरल थ्योरी दोनों की डेफिनेशन कवर करी है। रिमेंबर, जो हम लेमन टर्म में काउंसलिंग बोलते हैं वो अलग है, साइकोथेरेपी अलग है, ठीक है। काउंसलिंग इज समथिंग विच कैन बी डन ऑन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल, उसके लिए बहुत ज़्यादा सेशन नहीं चाहिए होते हैं, वो इन दी पॉइंट जो जो चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है उसको एड्रेस किया, समझा दिया, ये है। साइकोथेरेपी एंड बिहेवियरल थेरेपी भी बहुत स्ट्रक्चर्ड होती है, उसमें सेशंस डिवाइडेड होते हैं, पर्टिकुलर सेशन में क्या करना है, पेशेंट के रिस्पॉन्स रिएक्ट मतलब नोट डाउन करने हैं, उस पर कमेंट करना है, पेशेंट को चैलेंज करना है कि ये गलत हो सकता है। एट द सेम टाइम यू हैव टू बी अ वेरी एम्पैथेटिक लिसनर एंड लेट पेशेंट कम टू द पॉइंट कि ये चीज़ें गलत हैं। सो गाइडेड, एक गाइडेड स्ट्रक्चर्ड चीज़ है जो हम थेरेपीज की बात करते हैं। बिहेवियरल थेरेपी में क्या होता है कि पेशेंट के बिहेवियर को कैसे मॉडिफाई करना है यूजिंग सर्टेन लर्निंग प्रिंसिपल्स, कि पेशेंट ने कुछ माल लर्निंग कर लिए तो उसको कैसे इम्प्रूव करना है।
ठीक है। दी लर्निंग थ्योरीज में आपका जैसे आपने पढ़ा होगा कि रिवॉर्ड वाला चीज हो गया और पनिशमेंट वाली चीज हो गई, तो ये सब चीजें कैसे हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने ट्रीटमेंट पार्ट में. दिस इज व्हाट द बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल थेरेपी विल डील विद. ऑलराइट. Okay, I am moving with CBT because इसके बाद वाला जो है हमारा DBT which is more specific. तो CBT is cognitive behavior therapy. It combine cognitive therapy, changing thoughts with behavioral technique, changing action. So it is based on the fact that जो भी हमारा जो antecedent event होता है वो उसकी वजह से आप कुछ काम करते हैं. गाड़ी की टक्कर हुई, आपने सामने वाले को गाली दे दी, ठीक है. तो जो आपका बिहेवियर है वो कंट्रोल करना है. वो आपका जो एक्शन आया उससे पहले जो आपके थॉट्स है, आपको गुस्सा आया, शायद आप घर से ही फ्रस्ट्रेटेड थे या आपको लेट हो रहा है, इस वजह से आप परेशान हैं, ठीक है. तो वो चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना और उसको एड्रेस करना कि मेरा कुछ चीज़ को लेकर अगर गुस्सा आ रहा है, गाली दे रहा हूँ, तो किस वजह से हो रहा है, ठीक है. दिस इज व्हाट CBT एम्स एट. Based on the idea that distorted thinking leads to emotional distress, aims to change both thoughts and behavior to emotional well-being. So, कोई activating event है which represent antecedent with our events that initiate the chain of reaction. Then this is belief, which represents belief, which encompasses how you perceive and understand the given situation and see the consequences. This is ABC model of आपका CBT. Your emotional behavior response to antecedent event. So we will be targeting, अभी event तो आपके हाथ में है नहीं, ठीक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है. कॉन्सिक्वेंस और बिलीफ वाली चीज़ों को हमको टारगेट करना है. बिलीफ सिस्टम को टारगेट करेंगे, आप थोड़ा सा रैशनलाइज सोचेंगे, आपके जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस है उसमें काम करेंगे, तो कॉन्सिक्वेंस अपने आप विद टाइम चेंज होंगे. इट इज़ नॉट अ वन डे प्रोसेस, इट इज़ नॉट अ चीज़ की जो हफ्ते भर में ठीक हो जाए. इट विल टेक टाइम, इट विल टेक मेहनत फ्रॉम योर एंड as well as from the psychiatrist or psychologist ends as well. Okay. Now next is your DBT. It is a modified form of CBT. It is specifically designed for borderline personality disorders. ठीक है. So it was developed by Marshall and Hen. The term dialectical means finding a balance between acceptance and change. ठीक है. It combines CBT with mindfulness, acceptance and emotional regulation techniques. See, whenever the things change suddenly, ठीक है, कोई भी चीज़ जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही, हमारा बिलीफ है कि ऐसा होना चाहिए और वैसा नहीं होता है, वो एक इमोशनल टर्मोइल कॉज करता है, ठीक है. बिना इमोशनली बहुत ज़्यादा खुद को डिसरेगुलेट किए बिना चेंज को कैसे एक्सेप्ट करना है और कैसे रैशनलाइज उस चीज़ों को करना है, दिस इज व्हाट DBT एम्स एट. ओके. So what are the components of DBT? It could be an individual one-on-one session which focus on personal challenges and goals. It could be group-based learning, ठीक है, in a structured group setting. फोन कंसल्टेशन भी हो सकता है, ब्रीफ सपोर्ट सेशन बीच में कि कभी पेशेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, टर्मोइल में, तो फोन सेशन कैन ऑल्सो बी कंडक्टेड. एंड अ थेरेपिस्ट कंसल्टेशन टीम विच विल मीट रेगुलरली फॉर सपोर्ट एंड गाइडेंस टू डिलीवर इफेक्टिव DBT. तो सर्टेन कोई मेंबर्स ऑफ द टीम विल डिस्कस कि पेशेंट के ऊपर ये किया जा सकता है, ये किया जा सकता है, ये एरिया ऑफ वर्किंग इज रिक्वायर्ड एंड देन दे कैन कंबाइनली वर्क ऑन अ पेशेंट. ओके. So all four of them are the components. What are the modules? Mindfulness, very important. Being fully present and aware in the moment without judgment. Being present बहुत कम लोग कर पाते हैं, हम जज पहले कर लेते हैं, ठीक है ना. इसने मेरी गाड़ी ठोक दी, अब तो ये पिटेगा, ठीक है. रीजन हमने किस वजह से हुआ, यार वो तो सही जा रहा था, मैं ही गलत क्रॉस कर रहा था. दिस कुड बी द रीजन. मैंने स्पीड लिमिट क्रॉस करी है, दिस कुड बी द रीजन. I was a bit distracted, I was on phone, this could be also the reason. So mindful and being present is something which you'll have to start practicing. Then distress tolerance. Okay. Most of the time the distress is something जो हमसे emotional reaction बाहर निकलवाता है. And all of us, many of us, not all, have very poor tolerance towards the distress. So the therapy aims at managing crisis without making the situation worse. Then emotional regulation, understanding, first of all understanding that I am feeling angry, I am feeling anxious, I am feeling depressed.
इमोशन को समझना है, देन कंट्रोलिंग द इंटेंस एक्सप्रेशन ऑफ दैट इमोशन, देन कि चलो आई माइट रिएक्ट 5 minutes आफ्टर, ठीक है, अभी बहुत गुस्सा आ रहा है, आई एम वेरी एंग्री, आई माइट ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, आई माइट वॉक आउट ऑफ द सिचुएशन करेंटली, मे बी कम आफ्टर 15 minutes एंड देन थिंक कि मुझे रिएक्ट क्या करना है. Okay, interpersonal effectiveness, building health, which is eventually the target, building healthy relationship and communicating assertively. All right, so these are the four modules of DBT. Okay, again it is represented in your ग्राफिकल फॉर्म की इंडिविजुअल थेरेपी जो कि अप्रॉक्सीमेटली वीकली होती है, 1 घंटे की होती है. अगेन स्किल ट्रेनिंग या ग्रुप थेरेपी आपकी 1.5 to 2.5, दैट इज ऑल्सो वीकली. फोन कोचिंग कैन बी ऑफ अ comparatively shorter duration and as per the need. And again therapist consultation team weekly approximately 1 to 2 hours. And then I told you कि इसमें क्या mindfulness, non-judgmental awareness of the present moment, including thoughts and emotions, distress tolerance, learning to tolerate emotion in a crisis situation without making things worse, emotion regulation, changing unwanted emotion, reducing vulnerability to emotions, and interpersonal effectiveness, improving and maintaining relationship, and as well as self respect. ठीक है, खुद को भी नहीं डिटोरेट करना और सामने वाले को भी डिटोरेट नहीं करना है. ऑलराइट, नेक्स्ट इज स्कीमा फोकस थेरेपी. नाउ व्हाट आर स्कीमा, पहले ये समझिए, ठीक है. स्कीमा जो होते हैं ना आपके कुछ लॉन्ग स्टैंडिंग नेगेटिव बिलीव्स होते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल बचपन में एक बच्चे को पेरेंट्स नहीं देख पाए, ठीक है, या फिर पेरेंटिंग फॉल्टी थी, सो स्कीमा बन गया है कि एवरीबडी हेट्स मी, ठीक है. सो दिस इज समथिंग विच कुड बी कैरिड टिल फर्दर एज वेल. या फिर बचपन में किसी की बुलिंग हुई तो स्कीमा बन गया कि जितने भी लंबे लोग होते हैं वो तो खराब ही होते हैं, ठीक है. और वो आपका एडल्ट लाइफ में भी कैरी होगा. अब किसी दोस्त ने फोन नहीं उठाया तो स्कीमा बन गया ही माइट हेट मी, ठीक है. ऑफिस में बॉस बड़ा था, थोड़ा हेल्दी सा है, अच्छी बिल्ड का है, तो ये तो बुली ही होगा, ठीक है. So these are the schema. SFT is a type of psychotherapy that helps people understand and change long-lasting negative patterns of thinking, feeling, and behaving. Okay. Along, what is schema? A negative belief that about yourself and others. Then is a mode. Mode is an emotional state. कि आप किस emotional state में हो. You could feel like a neglected child. You could feel like a vulnerable child. You could feel like someone who has been bullied. जो ये आपका इमोशनल स्टेट है जो हमेशा आप अपने साथ कैरी करते हो जब आप किसी के बारे में कोई पर्टिकुलर थॉट बनाते हो, दैट इज मूड. क्लियर, ठीक है. द इमोशनल स्टेट और रोल यू शिफ्ट इनटू डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस. For example, angry child, vulnerable child, or you could also be a healthy and wise adult who know how to solve things. All right. देन नेक्स्ट फ्रेज इज लिमिटेड रीपेरेंटिंग. ये थेरेपिस्ट का रोल आता है जहाँ पे थेरेपिस्ट थोड़ा एम्पैथेटिकली अच्छे से हेल्दी रेपो बनाता है पेशेंट के साथ एंड विल गाइड द पेशेंट दैट वे मिसिंग एंड विल प्रेजेंट एज अ गाइड, ठीक है, दैट वाज मिसिंग इन चाइल्ड्स लाइफ, ठीक है. पेशेंट इससे क्या होगा, थेरेपिस्ट अगर थोड़ा एम्पैथेटिक होगा, गाइड होगा, तो ही विल patient will feel secure and will feel that he or she is being taken care of. ओके, जो अंदर से खुद के लिए डिसरिगार्ड की जो फीलिंग थी दैट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द मेथड ऑफ लिमिटेड रीपेरेंटिंग. देन इज एक्सपीरियंशियल वर्क. This exercise helps you feel and heal the emotional pain from past experiences. For example, is guided imagery. What will you tell your younger self? Okay, you are feeling that you are neglected, you are feeling very much washed out currently. Where did that feeling come from? अगर आपका you are feeling like as a child you were neglected, what will you tell that child? ठीक है, how will you guide that child to get out of that or to cope up from that particular situation? This is what is called guided imagery. Now, cognitive work. Now, this is where the challenging of the negative thought patterns will come, okay, and it would be replaced by realistic one. For example, everybody leaves me, nobody loves me. That is the feeling जो बच्चे को आई, बच्चे जो adult को आई थी because of whatever have happened in childhood. Then yeah, इसमें challenge क्या होगा? Okay, you were in this and that situation, that person helped you, currently he is not available because उसकी फैमिली में कुछ क्राइसिस चल रहे हैं. सो ये एक रैशनल थिंकिंग दे रहे हैं पेशेंट को, ठीक है, कि हाँ नहीं, नॉट एवरीबडी लीव्स मी, आई एम बीइंग लव्ड एंड टेकन केयर ऑफ बाय सर्टेन पीपल. And then behavioral changes.
finding a healthier way to respond to thing, ठीक है, saying no instead of always pleasing other. So this is something आप borderline personality के साथ देखोगे कि जब वो किसी के लिए करने के लिए आते हैं बहुत ज़्यादा करेंगे, नो ही नहीं कह पाएंगे, ठीक है, तो इस वजह से उनको बहुत थोड़ा सा भी कोई रीजनेबल रीज़न नहीं देगा कि हम इस वजह से आपके साथ अवेलेबल नहीं है, अब आपको अकम्पनी नहीं कर पाएंगे, तो पेशेंट विल फील नेग्लेक्टेड. So patient also has to learn how to say no when he or she is not able to perform certain work. All right. Now, how the therapy works? First of all, the identification of schema, that would be through question, life history, and discussion. Then understand where they come from to early experience, चाहे वो bullying है, negative parenting है, या criticism from others or parents है. Then we'll challenge those schemas and then we'll replace them with healthier pattern. Okay. So the goal is to move from neglected or a vulnerable child to a healthy, wise adult. Okay. So this is just a pictorial representation identifying early maladaptive schemes, explore emotional need, change helpful coping style and practice new behavior. Next उसके बाद आती है आपकी mentalization based therapy. Again mentalization based therapy में आपको mentalize करना है, आपको being present रहना है, ठीक है. Mentalizing meaning thinking about what is going on in your mind and in other people's mind so you can respond calmly instead of reacting impulsively. Somehow similar to जो हमने पहले पढ़ा था, but इसमें being present को ज़्यादा focus दिया गया, ठीक है. It helps people understand their own thoughts and feelings and the thoughts and feelings of others, especially when emotions are intense. So goal क्या है? To understand what you are feeling and why you are feeling. Recognize what others might be feeling or thinking. Control strong emotions before they control you. Improve relationship and reduce misunderstanding. And then building a safe and stable sense of self. ठीक है? This is again कि आपको understand करने को बोला गया है. आप रिफ्लेक्ट करोगे, पॉज करोगे, कुछ भी एक्सप्रेस करने से पहले. ओवरऑल द गोल इज टू इम्प्रूव द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है. नेक्स्ट इज ट्रांसफेरेंस फोकस थेरेपी. ट्रांसफेरेंस में क्या होता है ना, आप अनकॉन्शियसली जो अपने अंदर के थॉट्स है किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए, वो अगर हम टेक्निकल टर्म में बात करें तो थेरेपिस्ट के ऊपर सोच लेते हो. एज अ चाइल्ड यू वर अब्यूज्ड बाय योर फादर, पापा बहुत मारते थे, तो अब आपको एक मेल फिगर से डर बैठ गया, तो थेरेपिस्ट को आप वही समझ सकते हो, ठीक है. ट्रांसफरेंस के अंदर बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, अब मैं नेगेटिव की बात कर रही हूँ. So it says this personality disorder results from fragmented interpersonal representation of self and others leading to splitting and unstable relationship, ठीक है. Transference means when you unconsciously project old feelings or expectations from past relationships onto your therapist, ठीक है, or it could be towards others also. तो जो ट्रांसफरेंस फोकस थेरेपी होती है वो ये स्प्लिटिंग को, कि ये फीलिंग क्यों आ रही है आपके औरों के लिए, पर्टिकुलर जेंडर के लिए क्यों आ रही है, थेरेपिस्ट के लिए ऐसा क्यों आ रहा है, उसको टारगेट करती है. It helps recognize, understand and integrate this split path so one can see both the positive and negative sides of themselves and others at the same time. What are the goals? Goals are to understand emotional reaction as they happen, especially in relationship and with the therapist. Identifying splitting, seeing people as either perfect or evil, and learning to tolerate mixed feeling. Integrating self-image, help the person build a stable, realistic sense of self and others. Improve emotional regulation, that is to reduce impulsivity, self-harm and chaotic relationship. Develop healthier relationship with others outside therapy. ठीक है. Again, understand relationship pattern, gain insight into problems and examine feeling towards other which could be due to whatever has happened in your past, and then core idea is to develop healthy relationship. Next is steps. Now steps is a short form of systems training for emotional predictability and problem solving. यहाँ पे क्या होता है, नॉट जस्ट द पेशेंट, आप ग्रुप ऑफ पीपल सपोर्ट सिस्टम भी लेते हैं, एक सिस्टम फॉर्म करते हैं पेशेंट की हेल्प करने के लिए. दैट ग्रुप कुड इंक्लूड फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स. So it is a manualized psychoeducational group program that teaches emotional regulation and problem solving skill to patients with borderline personality disorder. It involves family members and friends, reinforcement team जिसको बोलते हैं, to create supportive environment. It is again a 14-week emotional regulation group बनता है which aims at understanding and accepting emotions implemented alongside the patient's existing outpatient treatment.
स्पेशली बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी एंड यंग पेशेंट्स जिसमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या इमोशनल टर्मोइल देखने को मिल रहे हैं उसमें हेल्प करता है। ठीक है, रिकॉग्नाइज, लेबल देम, मैनेज देम, सॉल्व, सपोर्ट एंड मेंटेन। ठीक है, दीज आर दी पॉइंट्स एंड स्टेप्स। नेक्स्ट अभी हम फटाफट चलते हैं। इंटरपर्सनल थेरेपी जो है वो आपका इंटरपर्सनल इश्यूज, कोई भी पर्टिकुलर जैसे ग्रीफ है, रोल डिस्प्यूट्स है, रोल ट्रांजिशन है, इंटरपर्सनल डेफिसिट है, उस पर टारगेट करके वर्क करेगी। इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इमोशनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो लिंक्ड होती है, कोई भी इंटरपर्सनल इश्यूज आ रहे हैं आपके ऊपर। ठीक है, then family psychotherapy and marital psychotherapy are also very helpful in dealing with the patients of personality disorder. ठीक है, group psychotherapy का part, group is also a part of psychotherapy, group therapy. This involves a small group of people with similar issues who meet regularly with a therapist to share support and learn from each other. It helps reduce एक तो isolation, आपका सोशल स्किल को इम्प्रूव करेगा एंड यू विल गेट टू रियलाइज कि देयर आर अदर पीपल जो सेम प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, लर्न हाउ दे डील विद सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज योर इनसाइट ओरिएंटेड which increases self awareness by highlighting की contradiction क्या है क्लाइंट की थिंकिंग में। आपका सेल्फ अवेयर कराएगी, इंसाइट डेवलप करेगी कि दीज आर द प्रॉब्लम एरियाज ऑफ माय थिंकिंग एंड हाउ कैन आई वर्क ऑन इट। ऑलराइट, so we quickly we'll see pharmacological therapy. So when we talk about pharmacological therapy, कोई दवा, कोई specific drug नहीं है which treats आपके personality disorder. Medication which we use, it will curb down the symptoms which can arise because of emotional dysregulation. Okay, classes of drug, antidepressants especially SSRIs are used, antipsychotics में second generations preferred है, मूड स्टेबलाइजर में लिथियम, वैल्प्रोएट, लेमोट्रोजिन, कार्बाजेपिन एंड कार्बामेज़ापिन, एंड बेंजोडाइजेपिन कैन बी यूज्ड एज एन एंजियोलिटिक्स। सो व्हेन वी सी पर्टिकुलर पर्सनालिटी में ज़्यादा नहीं देखेंगे, इसमें 3-4 ग्रुप्स देखेंगे। इम्पल्सिविटी और एग्रेशन के लिए अगेन एसएसआरआईज एंड मूड स्टेबलाइजर बोथ कैन हेल्प। अफेक्टिव इंस्टेबिलिटी में आपका इमोशनल लेबिलिटी में मूड स्टेबलाइजर्स कैन हेल्प, एंड दे आर ट्रांजिएंट या माइक्रोसाइकोटिक एपिसोड अगर इन बिटवीन आपको दिख रहे हैं तो उसमें लो डोज एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स वी आर गिविंग। ओके, एंटी सोशल पर्सनैलिटी में हमारे पास लिमिटेड एविडेंस है, बट अगेन अग्रेशन के लिए मूड स्टेबलाइजर एंड लो डोज एंटीसाइकोटिक्स। ओसीपीडी वाले जो पेशेंट है या एंग्शियस अवॉइडेंस जो पेशेंट है उसमें एसएसआरआईज, फ्लूऑक्सामिन, फ्लूऑक्सीटिन, सर्ट्रोलिन हाई डोज में देखने को मिला है। अगेन स्किज़ोटिपल, स्किज़ोइड, पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो उसमें अगेन एंटीसाइकोटिक्स का रोल है। ऑलराइट, next we have what are the pharmacological basis and side effects of drugs used in personality disorder. So we have broadly covered this topic when we have discussed schizophrenia and bipolar disorders. हमने एंटीडिप्रेसेंट से रिलेटेड, हमने एंटीसाइकोटिक से रिलेटेड एंड हमने मूड स्टेबलाइजर से रिलेटेड एंड स्पेशली बेंजोडाइजेपिन से रिलेटेड साइड इफेक्ट्स पढ़े हैं। तो वी विल हैव अ जस्ट क्विक रिकैप ऑफ ऑल दैट। ओके, so when we talk about the research, it has shown that ki personality disorder evolves from the dysregulation in neurotransmitter and limbic prefrontal circuit abnormalities. So there would be dysregulation seen in serotonin, dopamine, noradrenaline, GABA, and so we will using the medication जो कि इन सबको modulate करेगी to stabilize mood and behavior. So when we talk about antidepressant SSRIs, you know they modulate serotonin. ठीक है, for example fluoxetine, sertraline and acetylibrom, these are the most commonly used and they increase serotonin level. Common side effect GI disturbances, nausea, discomfort, in certain cases insomnia भी हो सकता है या फिर opposite sedation भी हो सकता है। ठीक है, depends on patient to patient. Sexual dysfunction is one of the quite concerning side effects when we're talking about SSRIs. Alright. Mood stabilizers में we have individually dealt with lithium, valproate in the past. ठीक है, so lithium as you know it works by modulating intracellular signaling and enhance serotonergic transmission. It reduces aggression and self-harm behavior. Similarly, valproate and GABA enhances GABA activity and reduces excitatory glutamate release, which helps the hyperactive emotional circuit. Again, lamotrigine stabilizes neuronal membrane and prevents mood swings by blocking voltage gated sodium channel. एडवर्स इफेक्ट यू ऑल नो, लिथियम के साथ ट्रेमर हो सकता है,
वी हैव रीनल कॉम्प्लिकेशन, वील सी एक इमेज में जिसमें हमको माइल्ड मॉडरेट सिवियर वाली चीज़ें मिल जाएंगी। जीआई डिस्टर्बेंसेस, सेडेशन हो सकता है वैल्प्रेट के साथ, वेट गेन, हेयर लॉस, एंड देन लिवर डिस्फंक्शन, हेपाटोक्सिसिटी, टेराटोजेनिसिटी, ये सब है। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम वी हैव ऑलरेडी सीन, ठीक है। लिथियम कैन कॉज पॉलीयूरिया, हाइपोथायराइडिज्म, रीनल इम्पेयरमेंट, वैल्प्रेट में लीड टू हेपेटोटॉक्सिसिटी एंड हेयर लॉस। कार्बामेज़ापिन एंड लेमोट्रिजिन रिस्क ऑफ ल्यूकोपीनिया, हाइपोनेट्रीमिया एंड लेमोट्रिजिन के साथ स्टीवन जॉनसन्स, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी रेगुलर इन मॉनिटरिंग रीनल फंक्शन, हेपेटिक फंक्शन, थायराइड फंक्शन, ठीक है। तो वैल्प्रोइट के साइड इफेक्ट वैल्प्रोइट ही है, वॉमिटिंग, एलोपेशिया, लिवर टॉक्सिसिटी, पैनक्रेटाइटिस, रैश, ओबेसिटी, एनोरेक्सिया, ट्रेमर एंड एंजाइम इनहिबिशन। लिथियम के साथ आपका जो शॉर्ट टर्म है वो आपका डायरिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ट्रेमर, एटेक्सिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया। इंटरमीडिएट में आपका अगेन यही चीज थोड़ा सा सिवियरिटी में बढ़ेगी, ट्रेमर्स, अटेक्सिया, ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडिस, माइलोप्रोलिफरेशन, एंड लॉन्ग टर्म में यू नो कि आपका रीनल डिस्फंक्शन हो सकता है, आपको डायलिसिस तक की नीड हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज एटिपिकल एंटीसाइकोटिक व्हिच ब्लॉक्स बाय D2 receptor and 5-HT2A receptor which will balance the dopaminergic and serotonergic system, ठीक है। weight gain, metabolic symptoms syndrome are few of the complications with second generation antipsychotic, ठीक है। Again, extrapyramidal symptoms quite less हैं, but it can be seen with drugs like risperidone, amisulpride, rigidity, tremors, ठीक है, Parkinsonism, and hyperprolactinemia and QT interval prolongation are some of the side effects which you have to remember. Benzodiazepine, again, it enhances the effects of GABA and the main inhibitory neurotransmitter in the brain, producing sedation and anxiolysis. तो इसके साथ याद ये रखना है कि इसको शॉर्ट पीरियड में देना है, जस्ट बिकॉज अगर बहुत एंशियस है पेशेंट तब देना और जल्दी टेपर डाउन करना है, बिकॉज डिपेंडेंस इज वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स ऑफ द बेंजोडाइजेपिन, ठीक है। इसके साथ आपको ड्राउजीनेस, कंफ्यूजन, विड्रॉल, रिबाउंड, विड्रॉल सीजर्स और ये सब देखना है, एंड विड्रॉल के साथ एंजाइटी और इरिटेबिलिटी बढ़ सकती है, तो स्लो टेपरिंग होनी चाहिए बेंजोडाइजेपिन की आपके हमेशा, ओके। Let us move to the last part of the today's discussion. When are you going to give a specialist reference for the patient of borderline, sorry, for the patients of personality disorders? So, when there is severe risk to self or others, suicidal tendencies है, violent behavior है, property damage कर रहा है, failure of outpatient or primary care management नहीं हो पा रहा है, diagnostic uncertainty है, कोई comorbid और psychiatric illness तो नहीं है, substance use तो नहीं है, structured psychotherapy which is not possible on outpatient basis है, तब भी आप patient को admit कर सकते हैं। Significant socio-occupational dysfunction है which requires rehabilitation and presence of, I told you, substance use या कोई forensic issues तो नहीं है, ठीक है। Refer किसे करना है? Psychiatrist, clinical psychologist and inpatient services. So in general मैंने आपका ये summary है कि multifactorial etiology है, symptoms सबके थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं, ठीक है। क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी, तीन में डिवाइडेड है, सब थोड़े थोड़े सिम्टम डिफरेंस हैं, एंड रिमेंबर कि थेरेपी, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल थेरेपी जो है, दे आर मोर प्रॉमिसिंग। ड्रग्स का यूज सिर्फ सिम्टम मैनेजमेंट में होगा एंड इट रिक्वायर्स अ लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, ऑलराइट। सो विद दिस विल कंक्लूड, थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग।